So hello friends, welcome back to our YouTube channel The Bong Tourers, where every ride tells a story. So today we have got something exciting for all the Street Fighter lovers, the all new Honda Hornet 125. And just by the looks of this bike looks stunning and very premium. So before we start our vlog today, I would like to introduce you to the owner of this bike, Mr. Rohit Bhaiya. So आपको कितने दिन हुए इस बाइक को ओन करे हुए? Not even 1 month. Not even 1 month. And how many kilometers it has run? 1331. Okay, so based on this kilometer, रोहित भैया हम लोगों को बताएंगे कि उनका इस बाइक के साथ राइड एक्सपीरियंस कैसा है एंड इस बाइक का परफॉर्मेंस, फिट एंड फिनिश, एवरीथिंग उनको कैसा लगा. So let's start our video. So the Honda Hornet 125 carries forward the bold and aggressive DNA of its elder siblings, and at first glance only you'll notice muscular fuel tank, sharp extensions at the fairing which will give you a Street Fighter look. Unique LED design of the headlight gives it a very good road presence. LED indicators and LED tail light. The diamond type frame ensures rigidity and overall body proportions make it look like bigger than most of the bike in its segment. So रोहित भैया, आपको इस बाइक का फिट एंड फिनिश कैसा लगा? फिलहाल अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है. इसका बैलेंसिंग बहुत अच्छा है, वाइब्रेशन भी उतना नहीं है, राइडिंग के लिए बहुत अच्छा है. पोस्चर अभी डिपेंड करता है जो चला रहा है Obviously. उसको कैसा कंफर्टेबल लगेगा, कैसा पोस्चर उसको पसंद है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन पर्टिकुलरली. और मेरे लिए तो ये राइडिंग पोस्चर भी बहुत अच्छा है, बाइक का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, एंड माइलेज का तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है मेरे को. इसके लिए इसके वजह से बाइक इज़ टू गुड फॉर मी. अभी फिलहाल इज गोइंग गुड. And is there anything you think Honda could have given to increase the build quality? For time being, Honda should have given one hazard feature. That is very important. Exactly. That should be like you have all types of mode over here. Yes, yes. You can listen to music, you can call while riding. But क्या है कि वो हैजर्ड का जो फीचर है वो रहता तो और भी अच्छा होता कि इमरजेंसी में अगर Exactly. रुक गया बाइक, कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो Exactly. हैजर्ड का ऑन कर देते तो आदमी को पता चलता है कि बाइक का कोई प्रॉब्लम हुआ है, खड़ा है या whatever. I mean, seriously, if the bike has any kind of problem in the middle of the road and there is no one around you, at least you can turn on the hazard lights to let others know. So that's a very important feature. And our next point will be engine type. The Hornet 125 is powered by a 124cc single-cylinder air-cooled engine which produces maximum power of 11 bhp at 8,500 rpm and 10.6 Nm of torque at 6,000 rpm. And this engine is paired by a 5-speed gearbox. So I have ridden this bike in heavy traffic and in smooth roads also, and I would say the power delivery is very smooth and linear, exactly what you would expect from Honda. It's not built for aggressive acceleration but built for refined city-friendly performance and with excellent fuel efficiency. Overall, the engine feels butter smooth with minimal vibrations, making the Hornet 125 a solid choice for daily riders who want both style and reliability. So रोहित भैया, आपको इसका पावर डिलीवरी कैसा लगा? पावर डिलीवरी तो फिलहाल बहुत अच्छा है, वाइब्रेशन भी उतना नहीं है, पावर अच्छा है, मतलब अकॉर्डिंग टू 125 पावर अच्छा है. Exactly. And what is the mileage you are getting? माइलेज तो कंपनी क्लेम करता है 55 to 60 क्लेम करता है अकॉर्डिंग टू गूगल. पर इसका एक अच्छा फीचर है, दिस इको मोड ओवर हियर. तो अगर आप बाइक चला रहे हो इको मोड में, अगर कंटिन्यूअसली यू आर ड्राइविंग द बाइक इन इको मोड, देन यू गेट अ लॉट ऑफ माइलेज. अभी फिलहाल मैं वो जब पता चल गया था मेरे को चलाते चलाते कि इको मोड में चलाने से ज़्यादा मिलेगा माइलेज. पहले स्टार्टिंग में मेरे को मिला था 38-40, तो आई वाज लाइक इतना कम क्यों दे रहा है, क्योंकि क्लेम करता है 55-50, तो आई शुड गेट 50. Exactly. फिर मैं जब पता चला कि इको मोड का जो फैसिलिटी है वो इसके वजह से आया है, इको मोड की टू गेट मोर माइलेज. तो वो जो इको मोड में जब मैं चलाना चालू किया, अभी मेरे को मिल रहा है माइलेज 64-65. Wow, that's very impressive. You can see over here in your screen, it's written you are getting 64. जब भी तुम बाइक को ज्यादा मतलब इको मोड छोड़ के तुम ज्यादा हाइपर राइडिंग कर रहे हो तो माइलेज यूजुअली ड्रॉप कर रहा है. यू कैन सी ऑल्सो कि माइलेज ड्रॉप करके वो 65 से 64 हो गया, 63 हो गया, 62 हो गया.
फिर उसको इंक्रीज करने के लिए फिर से इको मोड में चलाओ, प्रॉपरली एकदम पकड़ के फिफ्थ गियर दे के 40 में चलाओ तो बाइक का अच्छा माइलेज आएगा, लाइक मोर देन 60 तो ऐसे ही अभी मेरे को फिलहाल मिल रहा है, तो आई एम गेटिंग अ गुड यूटिलाइजेशन ऑफ द बाइक, अच्छा है। So overall, the Hornet 125 is a very good choice to riders who commute daily in city rides because the mileage is very good with almost no vibrations in it, right? Almost no vibrations. Almost no vibration. Yes, so almost no vibrations and the reliability of Honda is just perfect. So next point. The Hornet 125 has a very well balanced dimensions that adds to its street fighter appeal. So overall length of this bike is 2142 mm, width is 783 mm and ground clearance is 164 mm and with a seat height of 795 mm, which makes it really accessible to short height riders and gets a curb body weight of 141 kgs only, and with a fuel tank capacity of 12 liters. So the Hornet 125 comes with the premium suspension setup in its segment with USD forks, yes, upside down forks, which not only enhances its sporty appeal but also improves stability and handling. And at the rear, it gets monoshock that's tuned for comfortable yet controlled ride. But the suspension setup is non-adjustable at front and at rear. Do you like the suspension setup? वेरी गुड, लाइक बिकॉज ऑफ दिस यूएसजी, ये यूएसजी फॉक देने के बाद ब्रेकिंग बहुत अच्छा हो गया, और एबीएस तो है ही, वो तो अलग बात है, पर इसका ब्रेकिंग अच्छा है, सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है। मतलब अभी तक फिलहाल मतलब कोई भी पॉट होल्स में जब भी बाई मिस्टेक बाइक गिर गया, स्पीड में है, पॉट होल आ गया सामने, नोटिस नहीं किया रात का टाइम में तो गिर गया, पर वो जो है ना एक पॉट होल पे गिरने के बाद बाइक का एक अनकंफर्टेबल फील होता है कि बाइक का थोड़ा हैंडल बार हिल जाता है, कि प्रॉब्लम होता है, वो सब नहीं हुआ क्योंकि सस्पेंशन बहुत अच्छा है। फिलहाल तो आई एम गेटिंग अ वेरी गुड कम बैक एंड वेरी गुड रिव्यू फ्रॉम दिस बाइक। And do you face any kind of problem while dodging to city traffic? No. This handlebar is very good. This handlebar is very good. You can easily dodge any vehicle if you are good. If your riding skills are good, then you can dodge any vehicle, very quickly and in a very good way. But still, at first I was facing issue because of I was having this long clutch. I'm not used to this long clutch thing, so I was facing issue about that thing. But then after that, after my first servicing, now like I'm very used to this bike and it giving me a very good feedback. I'm like loving it. I think I have made a very good choice. Exactly, excellent. Even after being a 125cc, this bike is packed in a quite modern technologies that makes it stand out in its segment. So at first it comes with Honda's PGMI FI, which is programmed fuel injection system, which ensures precise fuel delivery, better throttle response, fuel efficiency and clear emissions. Fully digital instrument console that displays every information like gear position, fuel gauge, trip meter and service reminder. Although the Hornet 125 does not get any kind of riding modes, this bike's power delivery is so naturally smooth and linear that you don't even need the riding modes. And it's in right now eco mode. So as the owner said, जब ये बाइक इको मोड में चलती है तो मैक्सिमम माइलेज मिलता है। एंड ये जो इको मोड और इसके जो चेंजेस है ये ECU कंट्रोल करता है, मतलब कि आपके थ्रॉटल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि बाइक इको मोड पे चलेगी या फिर नहीं। एंड इट गेट्स turn by turn navigation, as you can see it's already on here, and Bluetooth connectivity and call messages alert. तो आपको इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल कैसा लगा? इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल तो बहुत अच्छा है क्योंकि इसका फीचर्स बहुत अच्छा दिया हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी सपोज आई एम गिविंग वन एग्जांपल, अगर सपोज देखो मेरा काम जो है मेरे को वेरियस लोकेशन में जाना पड़ता है, कुछ नोन लोकेशन होता है, कुछ अननोन लोकेशन होता है। अभी सब रास्ता तो मेरे को पता नहीं है, अभी मेरे को मैप का हेल्प चाहिए। अभी मेरे को जाना है एक जगह लोकेशन पे, वो लोकेशन पे मैं जाते जाते मैप ऑन कर लिया, गूगल मैप पे सेट कर लिया। अभी मैं बार बार जाते जाते नहीं देख सकता ना मैप पे कि मेरे को राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है कि सीधा जाना है, कितना किलोमीटर के बाद लेफ्ट लेना है राइट लेना है। इसमें एक अच्छा फीचर दिया हुआ है कि जब मैं मैप ऑन करूंगा, ये फोन के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो मैप इधर दिखता है मेरे को कि सपोज 300 मीटर जाने के बाद राइट लेना है, तो इधर मैप में दिखा रहा है कि आफ्टर 300 मीटर यू हैव टू टेक राइट, और ये बोलता भी है कि आफ्टर 100 मीटर टेक अ राइट। तो उससे क्या होता है, इजी फील होता है कि बार बार फोन नहीं निकालना पड़ता है, वो इधर देख के मैं राइट लेके लोकेशन में ठीक टाइम पे पहुंच जाता हूँ।
ये फीचर बहुत अच्छा दिया हुआ है बाइक का, जिसके वजह से मेरे को बहुत हेल्प भी मिलता है, काम के वजह से मेरे को बहुत हेल्प मिल रहा है, तो आई एम रियली लाइकिंग दिस फीचर। एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ टर्न बाय टर्न नेविगेशन। सो आपको इसका हेडलाइट थ्रो कैसा लगा? वो भी बहुत एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि हेडलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रात को तो अभी कुछ कुछ रास्ते पे ना लाइट नहीं रहता है, स्ट्रीट लैम्प एकदम ऑफ रहता है, तो उस टाइम पे लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी पोर्टल से या कुछ भी रह सकता है, कचरा, एनीथिंग। इसका जो लाइट है, इसका लाइट का पावर बहुत अच्छा है। हाई बीम का तो रेंज बहुत दूर तक जाता है। हाई बीम अगर इफ यू आर यूजिंग हाई बीम तो आपको बहुत दूर तक दिखेगा, और अगर जरूरत पड़ता नहीं है, क्योंकि इसका लो बीम का ही हेडलाइट का पावर बहुत इनफ है देखने के लिए। अगर इनकेस अगर चाहिए, अगर बहुत ज्यादा अंधेरा है, हाई बीम का लगेगा, तो अगर इफ यू स्विच ऑन टू हाई बीम तो इसका रेंज भी बहुत दूर तक जाता है और वेरी क्लियर विजिबिलिटी भी आता है। लाइट का रेंज बहुत अच्छा है, लाइट का क्वालिटी भी अच्छा है। ठीक। सो ओवरऑल मुझे तो ये बाइक बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी। इतना स्मूथ एंड रिलायबल इंजन विद फीचर्स लोडेड एंड एवरीथिंग इज टू मच परफेक्ट अबाउट दिस बाइक। सो आपको ये बाइक एक शोरूम एंड ऑन रोड कितनी पड़ी? अभी ये बाइक जब मैं लिया था, मैं बहुत पहले लिया था, तब वो जीएसटी जो ड्रॉप हुआ रिसेंटली, वो तब हुआ नहीं था। उससे पहले मैंने बाइक खरीदा, तब मेरे को ये बाइक एक शोरूम आया था 1,30,000। अभी तो उसका फिलहाल 10,000 या 8,000 कम हो गया, पर मैं जब लिया था तब 1,30,000 एंड आई विल से दैट आई एम सेटिस्फाइड। सो आपको ओवरऑल इस बाइक का फिट एंड फिनिश कैसे लगा? ओवरऑल तो मैं यही बात बोलूंगा, वन वर्ड आंसर, कि वैल्यू फॉर मनी है। इन्वेस्टमेंट किया 1,30,000 से ज़्यादा मेरे को इसका बेनिफिट्स मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर इतना फीचर्स है। इसका पावर अकॉर्डिंग टू 125 इसका पावर बहुत अच्छा है, प्रॉपर पावर है। इसका सस्पेंशन ऑन पॉइंट है। ऊपर से इसका जो फीचर्स दिया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया कि इसका मैप वगैरह, गाना, अगर सपोज आपका हेलमेट में इंटरकॉम लगा हुआ है, आपको गाना सुनना है, सपोज आपने गाना ऑन कर दिया, चला दिया गाना, पर आपको वो गाना नहीं सुनना है, गाना चेंज करना है, तो आपको फोन नहीं निकालना पड़ेगा, स्क्रीन से ही हो जाएगा। स्क्रीन से इधर में स्विच है, स्विच से आप गाना चेंज कर सकते हो। अगर आपको सपोज इनकेस कॉल करना है किसी को, तो आप इधर से ही कॉल कर सकते हो। आपको फोन में कोई हाथ वगैरह निकालना कुछ नहीं पड़ेगा। आप बाइक चलाते जाते आप वेरी कन्वीनियंट, वेरी लाइक, ये बहुत एडवांटेज है कि आप सपोज एग्जांपल मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरा इंटरकॉम कनेक्टेड है, कॉल आया तो मेरे पास इधर सुनाई देगा इंटरकॉम में कि कौन कॉल कर रहा है, तो मैं इधर से रिसीव भी कर सकता हूँ कॉल, बात करके मैं इधर से डिस्कनेक्ट भी कर सकता हूँ, गाना भी चेंज कर सकता हूँ। मैप में भी अगर मैं मैप सेट किया तो मैप में भी मैं डायरेक्शन इधर तो दिखाएगा ही, इधर इंटरकॉम में भी बोलेगा कि राइट लेफ्ट, इतना मीटर के बाद राइट लेना पड़े, इतना मीटर के बाद लेफ्ट। तो ये फीचर्स के लिए मैं बोलूंगा कि वैल्यू फॉर मनी है, कंप्लीटली वैल्यू फॉर मनी बाइक है ये, इन ऑल एस्पेक्ट। पावर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग भी बहुत अच्छा है, इसका सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी फिलहाल तो जितना टाइम में चलाया बाइक को, आई एंजॉयड राइडिंग दिस बाइक। सो आई विल सजेस्ट पीपल दैट इफ यू वांट टू बाई अ कमोटर बाइक, यू वांट लुक्स और आपको अच्छा माइलेज भी चाहिए, फीचर्स भी चाहिए, तो यू कैन गो फॉर Honda Hornet 125 and Honda's reliability, no doubt in that. So it's a very practical bike. So thanks for watching. Don't forget to subscribe our YouTube channel, The Bong Tudors, for such more informative vlogs. And thank you. And don't forget to click on the bell icon. Right, safe.